Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back in lecture number 2. Lecture number 2 is circle. Circle learning objectives. Circle geometrical representation of circle. The standard equation of circle. The general equation of circle. Equation of chord on a circle. Equation of tangent and normal of a circle. Examples. जो हमारे आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं इस लेक्चर नंबर 2 सर्किल में वो है सर्किल की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन एंड डेरिवेशन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल एंड जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल और इक्वेशन ऑफ chord ऑन ए सर्किल एंड इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ ए सर्किल एंड सम एग्जांपल ऑफ these cases. So circle definition: a circle is a set of all points in a plane that are equidistant from a fixed point in the plane is called circle. तो सर्किल ऐसे सेटों का पॉइंट है जो फिक्स पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पे मौजूद हों. These points are called circle. For example, here we have to consider a figure number 1, and this fixed point is called center, and we have to name them O, and this will be P. And according to the definition, distance of this point to this point means O to P1 and O to P2 and O to P3 will be equal. So OP1 equal to P, OP2 and OP2 equal to OP3. So this is called circle. And the fixed point is called the center of the circle. So this fixed point is called center of the circle. And the distance from the center to a point on the circle is called the radius of the circle. So this is a distance from center to point. So this is called radius of the circle. Standard equation of circle. To drive the standard equation of circle, here we have supposed that center of circle is HK and RB the radius of the circle, and P is any variable point on the circumference of a circle and having coordinates x and y. So as shown in picture number 2. Now according to the definition of circle, the set of all points which are equidistant from fixed point to variable points. So this is fixed point, it is called center, and coordinate of center is HK, and this is variable point whose coordinates are x and y. So according to the definition, the distance of CP equal to R. So mathematically we write Cp is equal to R, and we call this equation number 1. Now by using distance formula, distance formula is equal to radical x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now in this question, x1 is equal to h and x2 is equal to x, y1 is equal to k, and y2 is equal to y. Now by putting these value in distance formula, we get radical x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r. Now squaring on both sides, we get x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. This equation is called the standard equation of circle with center HK and radius is r. Now we will drive the general equation of circle. Let us consider the equation of circle with center AB. Now we have considered another equation of circle having center A comma B. So here will be center H and K. So here H will be A and K will be B. Now this equation will becomes as x minus a whole square plus y minus b whole square is equal to r square, and we have given them this equation 2. So this is equation number 2. As we know that from basic formula, a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square. By using above formula, we get means we have to simplify this term by using
a minus b whole square formula, and this term by using y minus b whole square formula. So this term will becomes x square minus 2ax plus a square plus y square minus 2by plus b square is equal to r square, or we can write this equation as x square plus y square minus 2ax minus 2by plus a square plus b square, and this r in this side will be positive and this side will become negative, so minus r square equal to 0. Now we will put a is equal to minus g and b is equal to minus f in this equation. So and a square plus b square minus r square is equal to c. Then we get this equation as x square plus y square, this minus minus 2 in the a, here we put minus g into x minus 2 b will be minus f, so into minus f into y plus a square b square minus r square. We have supposed that this is equal to c, so plus c equal to 0. Now we multiply this minus with this minus and this minus with this minus, so this equation become as x square plus y square plus minus into minus plus 2gx and minus into minus plus 2fy plus c is equal to 0, and we have given name this equation number 3. So equation number 3 is called the general equation of circle having center minus g minus f and radius is and c is equal to a square plus b square minus r square, or simply we get radius here, so r square is equal to a square plus b square minus a square plus minus b square plus c. By taking minus common, then r square is equal to a square plus b square minus c, and r is equal to radical a square plus b square minus c. So now we can write equation number 3 as by making it complete square. So by adding g square and f square both sides in equation number 3. So here we make it furthermore to complete square. So we add g square and f square both sides. So we get x square plus 2gx and adding by g square. So g square plus y square plus 2fy adding f square plus c equal to g square plus f square. Now x square, this equation will become as x square plus 2gx plus g square plus y square plus 2fy plus f square, and this c in this side will be positive and this side will become negative, so g square plus f square minus c. Now also we have know that a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. Now according to this formula, this side becomes as x plus g whole square, and this portion of equation y plus 2fy plus f square will become y plus f whole square and equal to g square plus f square minus c, which in view of equation number 2, when we compare this equation with equation number 2, like this equation number 2 in this, then we get center minus g and minus f and r is equal to g square plus radical g square plus f square minus c. So this will be the radius and this will be the center of the circle. Now as we know that general equation of second degree, ax square plus by square plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0, इक्वेशन नंबर 4. जैसे कि हमें मालूम है कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री वो इसके इक्वल होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2c के c इज इक्वल टू 0 के. इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3. अब इस इक्वेशन नंबर 4 को कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के साथ. वो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. जब इसको कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 4 के साथ तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर
and by square is equal to y square, here 2hxy. So in this equation, इस इक्वेशन में hx व xy की टर्म मौजूद नहीं है, तो 2hxy is equal to 0 and 2gx is equal to 2gx, so this will be cancelled, and 2fy equal to 2fy, so this will be cancelled, and c is equal to c, so c will be cancelled. Now here यहाँ से अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए इक्वल टू 1, और यहाँ पे वाई स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर विल बी कैंसिल, सो बी इज इक्वल टू 1. यहाँ पे अब इन 2 और एक्स वाई को 0 के इस तरफ भेजेंगे, इक्वल टू के इस तरफ भेजेंगे, तो वो डिवाइड में जाएंगे, तो h इज इक्वल टू 0 अपॉन 2hxy और h इज इक्वल टू 0. अब इन दोनों इक्वेशन से हमें ये मालूम होता है कि h इज इक्वल टू 0, a is equal to 1, b is equal to 1, which shows that a is equal to b. Hence, general equation of second order represents circle if only if h is equal to 0 and a is equal to b. अब हमें ये मालूम हो गया कि ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर है वो सर्किल को तब रिप्रेजेंट करेगी जब h इज इक्वल टू 0 हो या a एंड b इक्वल हो, तब ये जो है कि इक्वेशन जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिग्री की जो है कि वो रिप्रेजेंट करेगी सर्किल को, if and only if h is equal to 0 and a is equal to b. Now equation of chord of a circle. अब हम ड्राइव करेंगे इक्वेशन ऑफ chord of a circle. We have consider सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. हमने जो है कि सपोज किया है कि हमारे पास सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. इसकी जो है कि इक्वेशन ऑफ chord हम ड्राइव करेंगे. लेट पी x1, y1 and qx2, y2 be any 2 points on the circle. हमने सपोज किया है कि px1 and x2, qx2, y2 कोई भी 2 पॉइंट्स हैं ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ दी सर्कल पे. दिस विल बी p and this will be q, and this pq line segment is called chord of the circle. Now अब इस pq की इस लाइन सेगमेंट की इक्वेशन क्या बनेगी वो हम ड्राइव करते हैं. सिंस बोथ पॉइंट्स लाइज ऑन ए सर्किल. अब जैसे कि ये फिगर से पता चलता है कि ये दोनों पॉइंट्स P एंड Q लाइज ऑन ए सर्किल. अब ये हमारा सेंटर है ऑफ द सर्किल और ये वेरिएबल पॉइंट है, तो इसकी इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, क्योंकि इसका सेंटर हमारे पास 0 0 है. देन बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बन जाएगी. अब ये पॉइंटें भी सर्किल पे मौजूद हैं. जब ये पॉइंट मूव होके यहाँ पे पहुँचेगी तो इस एक्स और वाई की वैल्यू बन जाएगी x1 और y1. तो ये x1 और y1 इस इक्वेशन में पुट करेंगे x और y की जगह, तो ये इक्वेशन बन जाएगी x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. सिमिलरली जब ये पॉइंट यहाँ से घूमती हुई जब यहाँ पे पहुँचेगी तो इस x और y की जो है कि वैल्यू बन जाएगी x2 और y2. सिमिलरली ये x2 और y2 इस x और y की जगह पुट करेंगे तो हमें एक सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. तो इसको हमने रोमन नंबर इक्वेशन 1 कहा है और इसको रोमन नंबर इक्वेशन 2. अब इन दोनों इक्वेशन से हमें ये मालूम होता है कि ये भी आर स्क्वायर के इक्वल है और ये भी आर स्क्वायर के इक्वल है. तो दिस शोज दैट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर. अब ये जो x2 स्क्वायर है इज इक्वल टू के इस तरफ प्लस में है तो इस तरफ आएगा माइनस में, तो हमने इसको यहाँ पे लिख लिया है माइनस में. और ये y1 इस तरफ प्लस में था, तो सिमिलरली जब ये इस तरफ आएगा तो ये इसकी साइन चेंज हो जाएगी, वो नेगेटिव में आ जाएगा, तो ये y1 स्क्वायर. अब ये x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर हमने सेम लिखा है, लेकिन यहाँ से हमने जो है कि माइनस की साइन कॉमन निकाल दी है, तो दिस विल बिकम माइनस इंटू y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर. अब हमें जानते हैं कि हमें एक फार्मूला याद है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के इक्वल है. तो अब ये दोनों साइड्स जो हैं इस इक्वेशन की वो इस फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है, तो अब इन दोनों को हम जो है कि राइट साइड में लिख सकते हैं. तो ये बन जाएगा x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू ये माइनस, और ये बन जाएगी y1 माइनस y2 इंटू y1 प्लस y2.
और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया है। ऑल्सो इक्वेशन ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू, इस लाइन सेगमेंट पी क्यू की इक्वेशन वी कैन राइट बाय यूजिंग 2 पॉइंट स्लो फॉर्म। हम जो है कि 2 पॉइंट स्लो फॉर्म से जो है कि इस लाइन सेगमेंट की हमें इक्वेशन ये मिलेगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, जैसा कि हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ के हैं स्टेप लाइन में। अब इस इक्वेशन को हम जो है कि इस तरह राइट कर सकते हैं, ये जो y2 माइनस वाई वन है इस तरफ ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में, जब ये इक्वल टू के इस तरफ जाएंगे तो इस टर्म से डिवाइड हो जाएंगे, तो ये बन जाएंगे वो जो है कि y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन, और सिमिलरली ये x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस x1, ये अपनी सेम पोजीशन पे इनको जो है सेम ही रखा हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3, इसको हमने नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर 3। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, अब जो है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 और नंबर 3 को। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये है और इक्वेशन नंबर 3 ये है। तो लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई विथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई विथ राइट हैंड साइड। तो x1 minus x2 into x1 plus x2, this is the left hand side of equation number 2, and multiply left hand side of equation number 3, x1 minus x minus x1 upon x2 minus x1 equal to right hand side of equation number 2 हमारे पास थी y minus y1 minus y2 into y1 plus y2। अब इसके साथ जो है कि इसकी इक्वेशन नंबर 3 की राइट हैंड साइड हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, वो है y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस y1। अब यहाँ पे x2 माइनस x1 है, यहाँ पे x1 माइनस x2 है, तो यहाँ से हमने जो है कि माइनस कॉमन निकाल दिया, तो ये इक्वेशन बन जाएगी अब माइनस x2 माइनस x1 इंटू x1 प्लस x2, और ये सेम ही पीस हमने रखा है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। सिमिलरली यहाँ पे जो है कि अब हमारे पास मौजूद है y2 माइनस वन, यहाँ पे y1 माइनस y2, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे, तो ये इक्वेशन वो माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा। तो अब ये y2 माइनस का था तो ये प्लस का बन जाएगा y2, और ये y1 माइनस प्लस का है तो माइनस का, तो y2 माइनस y1 इंटू y1 प्लस y2 लिखेंगे, और ये सेम पीस। इससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि ये x2 माइनस x1 जो कॉमन फैक्टर है ये और ये दोनों कॉमन फैक्टर हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे y2 माइनस y1 भी कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमारे पास सिंपल सी इक्वेशन बचेगी x माइनस x1, और ये माइनस वन इससे मल्टीप्लाई होगी माइनस और इंटू x1 प्लस x2 इक्वल टू y2 माइनस y1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा y माइनस y1 इंटू y1 प्लस y2। अब ये जो इक्वल टू के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में है, तो इसको जब इस तरफ लेके आएंगे तो ये प्लस में बन जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 0 बच जाएगी। तो इस इक्वेशन को हम जो है कि इस इक्वेशन को हम इस तरह राइट कर सकते हैं या लिख सकते हैं x माइनस x1 इंटू x1 प्लस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ द कार्ड PQ। ये कहलाएगी इस लाइन सेगमेंट की इक्वेशन, इस PQ की। So this is the required equation of line segment PQ or chord PQ. Now equation of the tangent and normal of the circles। अब हम जो है कि equation of the tangent and normal of the circles find करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि टेंजेंट क्या है और नॉर्मल क्या होता है। तो इफ लाइन सेगमेंट टच कर्व, curve means the distance traced by a moving point is called curve. The line segment touch curve at a single point, then it is called tangent at that point। एक हमारे पास लाइन सेगमेंट हो, अगर वो किसी कर्व को एक सिंगल पॉइंट पे टच करे तो उसे कहते हैं लाइन, टेंजेंट लाइन। अदरवाइज अगर वो वन पॉइंट पे टच नहीं कर रही है, 2 पॉइंट्स पे कर रही है, तो उसे कहेंगे सेकेंट लाइन as shown in picture number 4। So this line segment is called tangent line because this line touching only on a single point on to this curve,
ये जो लाइन है सिर्फ इस कर्व को सिंगल पॉइंट पे टच कर रही है, तो दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। सिमिलरली ये जो लाइन है ये इस कर्व को दो पॉइंट्स पे टच कर रही है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, सो दिस इज कॉल्ड सीकेंट लाइन। सो ये टेंजेंट का कॉन्सेप्ट है। अब नॉर्मल इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। अब नॉर्मल क्या है? द लाइन सेगमेंट थ्रू परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द टेंजेंट एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड नॉर्मल। अब नॉर्मल लाइन सेगमेंट वो होता है जो उसी पॉइंट पे टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो, तो वो कहलाएगा लाइन सेगमेंट, नॉर्मल लाइन कहलाएगी। तो ये जो लाइन है ये सिंगल पॉइंट पे टच कर रही है इस कर्व को, लेकिन ये टेंजेंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। सो दिस लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड नॉर्मल। तो टेंजेंट के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि वो कर्व को सिंगल पॉइंट पे टच करे। सेकेंड के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि वो मोर देन वन पॉइंट पे कर्व को टच करे। और सेकेंड नॉर्मल लाइन के लिए नेसेसरी ये है कि वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए उसी पॉइंट पे। सो दिस इज नॉर्मल। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब जो ये लाइन सेगमेंट है इसे इट इज कॉल्ड टेंजेंट, ये टच कर रही है किसी कर्व को सिंगल पॉइंट पे, तो इस लाइन सेगमेंट की इक्वेशन क्या बनेगी वो हम ड्राइव करते हैं। सो इट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। वी हैव कंसीडर द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। हमने सर्किल कंसीडर किया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसकी जो है कि हम टेंजेंट इक्वेशन फाइंड करेंगे। इस सर्किल का सेंटर एट ओरिजिन है। तो टू फाइंड दी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वी हैव टू मेथड्स। हमारे पास टू मेथड्स हैं। मेथड नंबर वन, टेंजेंट इक्वेशन फाइंड करने के हम यूजिंग इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो यूजिंग बाय इक्वेशन नंबर कॉर्ड, तो जैसे पहले से इन कॉर्ड सेक्शन में हम ड्राइव करके आए हैं, इक्वेशन नंबर कॉर्ड इज x माइनस एक्स वन इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई वन प्लस वाई टू इज इक्वल टू जीरो। ये हम ड्राइव करके आए हैं अभी। तो ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P x1 y1 और x2 y2 इज ऑब्टेन्ड। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम यहाँ तो इस पॉइंट P1 पे फाइंड कर सकते हैं या इस पॉइंट Q पे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट किसी कर्व मीन्स इस सर्कल को जस्ट सिंगल पॉइंट पे ही टच करेगा, तो वो टेंजेंट कहलाएगा। तो ये जो अब इक्वेशन ऑफ सीकेंट लाइन जो लाइन सेगमेंट पी क्यू की जो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बनी है हमारे पास, जो ये हम ड्राइव करके आए हैं, ये x माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू वाई माइनस वाई वन प्लस वाई टू। तो अब ये लाइन सेगमेंट हमारे पास टेंजेंट तब बनेगा जब ये पॉइंट x1 y1 यहाँ से मूव होके यहाँ तक पहुँच जाए, मीन्स x2 के इक्वल बन जाए x1 और y1 y2 के इक्वल बन जाए, या ये x2 ये Q पॉइंट यहाँ से घूम के यहाँ तक पहुँच जाए। तो ये जो लाइन है फिर इस कर्व को, इस सर्कल को सिंगल पॉइंट पे टच करेगी, तो फिर x2 इज इक्वल टू x1 बन जाए और y2 इज इक्वल टू y1 बन जाए। तब जो है कि हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं। सो हेयर बाय पुटिंग y2 इज इक्वल टू y1, हम कहते हैं कि ये y2 हमारी ये वाली पॉइंट जो है कि मूव होके यहाँ पे आ रही है, तो ये अब हमारी टेंजेंट लाइन बन जाएगी। तो x2 इज इक्वल टू x1 बन जाएगा और y2 इज इक्वल टू y1 बन जाएगा। So by putting y2 is equal to y1 and x2 is equal to x1 in equation of chord, इस इक्वेशन नंबर ऑफ कॉर्ड में हम x1 की जगह x2 की जगह x1 पुट कर देंगे और y2 की जगह पे हम y1 पुट कर देंगे। तो दिस इज इक्वेशन कॉर्ड में हमने पुट कर दिया x माइनस x1 प्लस x2 था, x2 की जगह हमने x1 पुट कर दिया, प्लस y माइनस y1 और y1 प्लस y2 था, यहाँ पे y2 की जगह हमने y1 पुट कर दिया। अब सिंपली इनको ऐड करेंगे तो ये x माइनस x1 इंटू ये 2x1 बन जाएंगे और ये प्लस y माइनस y1 इंटू 2y बन जाएंगे इक्वल टू 0। अब इन दोनों पोर्शन में यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन
कॉमन निकाल के इस तरफ भेज देंगे तो 0 से डिवाइड हो जाएंगे तो वो 0 बन जाएगा। जहाँ इस इक्वेशन को दोनों तरफ से डिवाइड करवा देंगे 2 के साथ, तो ये इक्वेशन हमारे पास रिड्यूस होके इस फॉर्म में आ जाएगी, x माइनस x1 इंटू x1 प्लस y माइनस y1 इंटू y1 इक्वल टू 0। अब ये y1 इस दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और ये x1 इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगी x इंटू x1 माइनस x1 इंटू x1 स्क्वायर प्लस y इंटू y1 बन जाएगा माइनस y1 इंटू y1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को मोर हम सिंप्लीफाई इस तरह करके लिख सकते हैं। अब ये जैसे x1 का स्क्वायर और y1 का स्क्वायर, ये दोनों जो है टर्म्स यहाँ पे नेगेटिव हैं, इनको इस तरह भेजेंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएंगी। तो यहाँ पे x1 प्लस y इंटू y1 इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। अब जैसे कि इक्वेशन ऑफ सर्कल है हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, सो वो शोज दैट x1 प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू r, सो दिस विल बिकम r स्क्वायर। सो इसकी जगह हम अब r पुट कर देंगे तो x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 इज इक्वल टू r स्क्वायर हमें मिल जाएगा। सो दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट of the circle having center at origin। so ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है कि सर्कल की, और सर्कल की जिसका सेंटर एट ओरिजिन है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर की। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। मेथड नंबर 2 बाय यूजिंग डेरिवेटिव मेथड। एक सेकंड मेथड भी है हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने का, वो है बाय यूजिंग डेरिवेटिव। सो हमने सेम ही सर्कल उठाया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वही इक्वेशन उठाई है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। ये वो सर्कल है जिसका सेंटर एट ओरिजिन है। अब लेट पी x1 y1 बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज ज्योमेट्रिकली इन द फिगर नंबर 2 इज पिक्चर। अब जैसे कि फिगर नंबर 5 में हमने जो है कि शो करवाया कि ये पी x1 y1 एनी पॉइंट है ऑन द सर्कल पे, तो ये लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन बिकॉज दिस लाइन टचिंग ऑन ए सिंगल पॉइंट ऑफ सर्कल गिवन ए सर्कल दिस। सो इस सर्कल का जब जिसका सेंटर ओरिजिन है और एक वेरिएबल पॉइंट है तो उसकी इक्वेशन ये है। अब इस ये उसकी पॉइंट है, टेंजेंट पॉइंट है, तो यहाँ से जो ये सेगमेंट है इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। सो बिकॉज दिस टचिंग ऑन ए सिंगल पॉइंट ऑफ गिवन सर्कल, तो इस लाइन सेगमेंट की इक्वेशन फाइंड करेंगे बाय यूजिंग डेरिवेटिव। एज वी नो दैट पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज, जैसा कि हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ के हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू y माइनस y1 इंटू इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 के इक्वल है। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट, जो ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हमें डेरिवेटिव मिलेगा ये इक्वेशन नंबर 2 हमारी सेम, और इक्वेशन नंबर 1 का डेरिवेटिव तो वो हमें मिल जाएगा 2x प्लस 2y dy अपन dx इक्वल टू 0, क्योंकि r हमारे पास कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 बन जाएगा, और 2x का विथ रेस्पेक्ट टू x है तो 2x मिलेगा, और यहाँ पे 2y स्क्वायर था तो 2y पहले पावर का डेरिवेटिव, अगेन इसका डेरिवेटिव बाय चेन रूल, तो 2y dy अपन dx। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2x इस तरफ प्लस के हैं तो इस तरफ माइनस के, तो dy अपन dx इज इक्वल टू माइनस 2x, और ये 2y इस dy के साथ मल्टीप्लाई में थे तो इस तरफ वो डिवाइड में हो जाएंगे, तो dy अपन dx इज इक्वल टू माइनस 2x अपन 2y, सो हेयर 2 and 2 कैंसिल, सो dy अपन dx इज इक्वल टू माइनस x अपन y। नाउ डेरिवेटिव एट ए पॉइंट x1 y1 बिकम्स एज, अब ये तो हमें डेरिवेटिव मिल गया इक्वेशन नंबर 1 का जो हमारे पास सर्कल था। अब इस डेफिनेशन टेंजेंट के मुताबिक दिस इज कॉल्ड टेंजेंट इफ इट टच ऑन सिंगल पॉइंट, तो अब ये पॉइंट इस डेरिवेटिव में हम पुट करेंगे जो हमने डेरिवेटिव लिया है, तो x की जगह x1 पुट कर देंगे और y1 की जगह y1 बिकॉज हियर x1 एंड y1 इज गिवन पॉइंट। सो दिस इक्वेशन बिकम एज dy upon dx at x1 y1 equal to minus x1 upon y1। Geometrically, derivative is the slope of the tangent line. Geometrically, the slope of the tangent line is called derivative. So m is equal to dy upon dx,
एंड इक्वल टू माइनस x1 अपॉन y1, हमें जो है कि डेरिवेटिव मिल जाएगा एट पॉइंट x1 पे। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ m। अब यही वैल्यू m की जो है कि इस इक्वेशन नंबर 2 में m की जगह हम m की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस x1 अपॉन y1। So now this equation मतलब equation number 2 becomes as y minus y1 minus x1 upon y1 into x minus x1। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे तो ये y1 इन y माइनस y1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा y इंटू y1 माइनस y इंटू y1 स्क्वायर, और ये माइनस x1 इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये माइनस x इंटू x1 और माइनस इंटू माइनस प्लस x1 इंटू x1 स्क्वायर जो है कि बन जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये y1 माइनस का स्क्वायर है तो इसको इस तरफ लेके आते हैं, और ये x1 और x माइनस की टर्म इस तरफ है तो इसको इस तरफ लाएंगे तो प्लस की बन जाएगी। तो ये इक्वेशन बन जाएगी y माइनस y1 प्लस x इंटू x1 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। So therefore, as we know that